Assalamualaikum, my dear student. Today we are going to start with the JavaScript variables and data types. We should know what is data type, what is variables. So let me start off. In JavaScript, there are data types which are used to store the values, the character, and so on. So we are basically having 4 to 5 things which should be understand. First one is the number data types, which stores the number in the form of fractional or in the form of non-fractional. Okay, that is in a decimal point or without decimal point. Second, we are having a string which is store the data which is in the form of string, that is in the form of text. Next data types we are having boolean, that is store the data type in the form of true or false. Then we have primitive tribal data type that we are using is null and undefined. Null is, and these two data types is used for singular. In addition to these primitive data, we are having one more data type, that is object. Object data types I will be showing you in one of my next videos, so that it will you will be able to understand that things. So better I will show you in that next video. Next is variables. What is variable? Variable is nothing but the value, the data type which you store is in the form of variable. So that is your contain. That is a content which you want to store it. That is called as variable. It may be and it is described most probably with the help of the keyword, that is var, 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 and the name which you want to store. Okay. So this is the container. Now here you see here data variables can be declared using separately or within a all the variables can be defined into a single, that is two type of variable. First I am showing you the first example. The first is that is a variable money semicolon variable, but it is storing this variable name. We are writing it in a different means in a one-to-one form, where if you want to all that you don't want to waste time, then we are going with the multiple with the same var keyword. Okay, just we have to write here var, and what variable you want to denote it, that you will be writing in this. Now the main two things which we should understand in this variables, that is the what is the scope of the variable. There are mainly two type of scoping we are having, and that is a global variable and your local variable. ग्लोबल वेरिएबल, दिस वेरिएबल इज डिफाइंड एनीवेयर इन योर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. कहीं भी आप इसको डिफाइन करेगा, ये फंक्शन के अंदर नहीं कॉल करता, फंक्शन के बाहर भी आप कॉल कर सकते हो. पर लोकल वेरिएबल में आप क्या करोगे, फंक्शन के अंदर भी आप कॉल करोगे और फंक्शन के बाहर नहीं कॉल कर सकते. ये लोकल वेरिएबल है, तो इसलिए इसको दो तरह से डिक्लेयर किया गया है, ग्लोबल, सेकेंडली लोकल. Hope you understand what is global variable, which can be called anywhere in the JavaScript, where the global variable will be called within the function, that is within the parameter of the function. Okay, now यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब ये ग्लोबल देखो, यहाँ पे कॉल किया है बॉडी ऑन लोड, ये आपका फंक्शन है, ये बाहर है, ठीक है. अब ये देखो ग्लोबली कॉल किया वेर माई वेरिएबल, मतलब ये डिक्लेयर किया हुआ फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हो गया, तो इसलिए डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल फंक्शंस बाहर में डिक्लेयर हो. वहीं पे जब डिक्लेरेशन इनसाइड है, वहाँ मतलब आपके फंक्शन के अंदर के पैरामीटर में कॉल किया जा रहा, तो इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट व्हाइल यू नेमिंग, तो आपको कौन कौन से रूल फॉलो करना व्हाइल नेमिंग दैट. फर्स्ट, यू शुड नॉट यूज एनी ऑफ द जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड, मतलब जो भी रिजर्व कीवर्ड है जो इनबिल्ट है आपके प्रोग्रामिंग इसमें, उसे आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें. दीज कीवर्ड्स आर मेंशन इन द टेक्स्ट सेक्शन, फॉर एग्जांपल ब्रेक और बुलियन. तो आपको मैं फर्दर दिखाऊंगी कौन सा रिजर्व है. विथ नेम्स आर नॉट वैलिड, ठीक है. जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ, कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. दे मस्ट बिगन पहले लेटर से और एन अंडरस्कोर कैरेक्टर से बिगन हो. जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1 2 3 इज नॉट वैलिड. अगर आप अंडरस्कोर लगा दिए, मतलब स्पेशल साइन लगा दिए, तो आप इट्स वैलिड. ओके. नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब आप अगर ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं समटाइम व्हाट वी थिंक
वी आर राइटिंग द सेम थिंग ना मिस, बट वाई द कोडिंग इज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि केस सेंसिटिव है। अगर आप एन कैपिटल है और सब डिनोट कर रहे हो और फिर वो उसी चीज़ से आप कॉल करोगे तो वर्कआउट होगा, मगर अगर आप एन स्मॉल और उसको कॉल करोगे तो वो उसको कैंसिल वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि किस वेरिएबल को आप कॉल कर रहे हो। ये इस तरह से मतलब जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। तो आप ऐसा नहीं कि ये HTML के रिलेटेड नहीं, HTML में कैसा ना वो केस सेंसिटिव नहीं था, कभी भी आप कहाँ पर भी कॉल कर सकते थे। तो अगर वो नेम बड़ा है तो चलेगा, छोटा HTML अगर कैपिटल लिखे तो भी चलेगा, स्मॉल लिखे तो भी चलेगा। दैट्स द थिंग। नेक्स्ट ये रिजर्व वर्ड है जो आप ये इसे कहते हैं इन बिल्ड वर्ड, जिसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट आ सकता है, बूलियन, ये सब कैसा है ना इन बिल्ड। ये कोई कोई आपको लूपिंग सिस्टम में दिखेगा, कोई कोई आपको ये फ्लोट आपको मतलब दिखेगा आपको किस में कि जब आप नंबर्स को बुलाने वाला रहोगे तो ये फ्लोट दिखेगा आपको। प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, ये जो आपको दिख रहा है ये प्राइवेट पब्लिक मतलब ये प्राइवेट मतलब ये प्राइवेटली हो रहता है डेटा अवेलेबल, ये आपको जो अदर साइड है वो नहीं देख सकते। प्रोटेक्टेड मतलब जो प्राइवेट के अंदर किसी चीज़ को हम लोग ना दिखाना चाहे तो प्रोटेक्ट, और पब्लिकली मतलब विजिबल टू एवरीवन। दिस इज तो ये सारे वर्ड्स है ना जो रिजर्व्ड है, इसे इसे इसके बिना आप कोई भी वर्ड्स डाल सकते हो वेरिएबल के, मगर ये वर्ड रिजर्व्ड है, इस पर आप नहीं कर सकते। दैट्स द थिंग वी शुड अंडरस्टैंड। तो ये आप बेसिकली यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रिजर्व वर्ड। तो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। और ये इसलिए मैं एक बैक स्लाइड पे जाके आपको ये बता दूँ, ये जो एग्जाम्पल है ये आपको इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की कि आप ग्लोबल का मतलब क्या रखो, मतलब आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे कहीं पर भी आप कॉल करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक जगह पे जहाँ लोकली है वो कैसा होता है कि आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो, उसके पैरामीटर के अंदर ही उसे डिक्लेयर करना, उसके बाहर नहीं आपको डिक्लेयर करना। दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ अ लोकल वेरिएबल। ये दो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है। कभी कभी आप अननेसेसरी थिंग्स कर देते हो और उसके बाद वो कोडिंग वर्कआउट नहीं करता है, देन यू कम विद अ लॉजिक दैट हाउ आई हैव डन एवरीथिंग बट स्टिल माय कोडिंग इज नॉट वर्किंग। तो बेसिकली वी शुड नो कि ग्लोबली कहीं भी आप फंक्शन के बाहर भी कॉल कर सकते हैं, अंदर भी कॉल सकते हैं, और लोकल वेरिएबल जो होगा वो हमारे फंक्शन के अंदर के पैरामीटर में कॉल डिक्लेयर करोगे। दैट इज़ द मेन थिंग वी शुड नो अबाउट लोकल। एंड सो होप यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये रूल्स भी आपको पता हो गया होगा कि क्या क्या रूल्स है। पहली बात तो जो भी रिजर्व कीवर्ड है जो मैंने पहले ही दिखाया था स्लाइड में, वो कीवर्ड्स के बिना और कोई भी कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज नंबर से नहीं आपको डिनोट करना है, आपको अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हो या अंडरस्कोर से फिर डिनोट करोगे तो वो वैलिड है। दूसरी बात ये केस सेंसिटिव है, तो इसके वजह से ये है कि अगर आपने समझो नेम कैपिटल एंड कैपिटल लिखा है एक जगह और दूसरी जगह स्मॉल लिखा है तो वो आपको एरर्स दे सकता है। दैट्स द मेन थिंग यू शुड नो अबाउट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम। ये कीवर्ड्स है, इसे बहुत अच्छी तरह से देख लो। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, बुलियन है, ब्रेक है, बाइट है, केस है, कैच है, कैर है, ये सब क्या है रिजर्व वर्ड है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो ये सब कैर का मतलब होता है ये एक तरह का डेटा टाइप है, तो इसके लिए ये रिजर्व वर्ड है। तो इसको आप कॉल करोगे अपने वेरिएबल में तो कॉल नहीं होगा, उसको रिजर्व वर्ड है। दैट्स द मेन थिंग वी शुड अंडरस्टैंड विथ इट। सो होप यू एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स रिगार्डिंग टू द वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। थैंक you for watching my video. Please subscribe the channel so that you can get more and more video updates whenever I upload on the screen. And please comment also. If you don't understand, please contact also with the help of comment that you are not able to understand, so that I again can explain you. Jazakallah khair. Amen.